जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजनरंजन। यशोदनंदन व्रजनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा।
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। So today we shall be reciting from Srimad Bhagavatam, count to 1, chapter 17, text 18 onwards. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastuki. Hare Krishna. Please accept my obeisances unto your feet and bless me so that I can speak a little bit about Krishna and Krishna devotees. So today, text 18. Navayam kalesha bijani yatashu purushashabha purusham tam bijanimo vakya bheda vimohitaha. Navayam klesha bijani yatashu purushashabha purusham tam bijanimo vakya bheda vimohitaha. Navayam klesha bijani yatashu purushashabha purusham tam bijanimo vakya bheda vimohitaha. Word meaning? No, नहीं, वयम हम, क्लेश बीजानी कष्टों के मूल कारण को, यतः जहाँ से शिव ऐसा होता है, पुरुष ऋषवः हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषम पुरुष को, तम उस, बीजानीम जानो, वाक्य भेदम मत भेद, विमोहिताः मोहग्रस्त. Translation and purport by His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं. सो purport है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो 3 paragraphs are there. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. এই জগতে বহু মতাবলম্বী দার্শনিকরা কার্যকারণ সম্পর্কে, বিশেষ করে দুঃখের কারণ সম্পর্কে আর বিভিন্ন জীবের উপর তার প্রভাব নিয়ে তাদের নিজেদের মতবাদ উপস্থাপন করে থাকে. মোটামুটি 6 জন মহাদার্শনিক হলেন বৈশ্লেষিক দর্শনের প্রণেতা কনাদ, ন্যায়ের প্রণেতা গৌতম, যোগের প্রণেতা পতঞ্জলি, সাক্ষ্য দর্শনের প্রণেতা কপিল, কর্মমীমাংসার প্রণেতা জৈমিনী এবং বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা ধর্ম এবং ধরণী যথার্থ জানতেন যে তথাপি ভগবত ভক্ত হওয়ার ফলে তারা ভালোভাবে জানিয়েছিলেন পদ্মপুরাণ অনুসারে প্রারব্ধ কর্মের 4 গাছ তার জন্যই আমাদের এখন ক্লেশ হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রারব্ধ পাপের চারাগুলি শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়. তাই দুষ্কৃতকারীদের দেখলেও ভগবত ভক্তজনেরা তাদের ক্লেশের জন্য কাউকে দোষারোপ করেন না. তারা স্বীকার করে নেন যে কোনো পরোক্ষ কারণের প্রভাবেই সেই দুরাচার কি তার কর্ম করছে, এবং তাই তারা সমস্ত দুঃখ দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করে গ্রহণ করে. তারা মনে করেন যে নিহাত কোনো দুর্ঘটনা ঘটার ছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় অল্পের পর দিয়ে তা কেটে গেল. মহারাজ পরীক্ষিত তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিটি কে, কিন্তু উপরোক্ত মনোভাবের ফলে তারা জানতেন না. মনোধর্মী দার্শনিকেরা অবশ্য স্বীকার করে না যে ভগবানের অনুমোদনই হচ্ছে পরম কারণ. পক্ষান্তরে তাদের নিজস্ব জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে দুঃখের কারণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হবে. শ্রীল গোস্বামীর মতে
यही कारण है गुणधर्म दृष्टि का विभ्रांत महत्व टाइप का परमेश्वर भगवान के सर्व कारण परम कारण बोले जानते पारे ना कंप्लीटेड कंप्लीट करो परिवार मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते पिताका समनिति नामने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाने गौरगदाधमदाय नगरमतारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत समनिति नामने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद। न वयं क्लेशबीजानि यतशो पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। तो धर्म अब परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। महाराज परीक्षित ने उनसे कहा, इस काइंड ऑफ विटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन कि बताओ तुमको ये कष्ट किसने दिया। महाराजा परीक्षित सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिसने अपराध किया है दंड उसी को मिलेगा, और बजाय मैं अपने तरफ से सोचूं, मैं उनसे पूछूं जिनको दंड मिला तो बताए आप दोनों के साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया, ताकि उचित दंड की मैं व्यवस्था कर सकूं। और ऋषभ कितना शानदार बोलते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ, राजा श्रेष्ठ, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमको कष्ट किसने पहुंचाया है। जितने भी दार्शनिक लोग हैं वो अलग अलग बातों की अलग अलग बातें करते हैं। दूसरा श्लोक भी इससे मिलता जुलता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। तर्को प्रतिष्ठो श्रुति विभिन्ना, अनेक प्रकार के लॉजिक हैं और अनेक प्रकार की श्रुतियां हैं। ये कह पाना, यह निश्चित कर पाना कि एक यही कारण है, ये हमें नहीं मालूम। प्रभा जी लिखते हैं अपने उनवासा कमेंट्री में कि धर्म भी बैल गाय को मानते थे कि कली के मूल कारण है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो जब भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है तो इस कली पे हम दोष क्यों दें। कहते हैं एक सूखा पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, लेकिन मारी मरे कुसंग की केरा के संग बेर, केरा डोलत फिरत बेर देत केर छेर। जो संग है, मारी मरे कुसंग की, जब गलत संग मिल जाता है, गलत लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, दो चार हो जाते हैं, तो मारी मरे कुसंग की केरा के संग बेर। जैसे बेर मालूम है आपको, बेर को बेर ही बोलते हैं, उसमें बहुत कांटे होते हैं और कांटे टेढ़े होते हैं। और एक केला का पत्ता हो और जब हवा चलती है, अगर दोनों साथ में हो तो केला जब डोलता है और बेर जब डोलती है, और जब केले के पत्ते बेर में फंसते हैं तो बेर उनको चीर देते हैं। मारी मरे कुसंग की केरा के संग बेर, केरा डोलत फिरत
बेर देत केला चेर, केले के पत्तों को छिन्न भिन्न कर देता है। जैसे महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। तो कभी कभी हमारा जो संग है या जनसंग है वो हमें छेद भेद कर देता है, परेशान कर देता है। अगर इन गाय और बैल को कल ही ना मिला होता तो इनकी हालत ये ना होती। अभी कैसा हो गया? ये सब भगवान की कृपा है। श्रीमद् भागवत में उदाहरण में श्लोक तो भूल रहा हूं मैं, उसमें है ऐसे नारद मुनि बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में जब लहरें आती हैं, उन लहरों में कीट पतंग भी आते हैं और वो एक जमा हो जाते हैं। तो किसी वजह से एक साथ इकट्ठे हो गए, उस बाद दूसरा टाइड आया, वो दूर अलग जा गए और फिर कहीं और इकट्ठे हो गए। हमारा मिलना और बिछड़ना ये सब प्रकृति के अधीन है। दैवाधीनेषु कामेषु, दैवाधीन पुमान, थोड़ा गलत है श्लोक, दैवाधीनेषु कानेषु। ये हम जो कार्य करते हैं ये सब दैव के अधीन है। इस ऋषभ को और धारिणी को, गाय को, इसका मिलना एक प्रभु की कृपा हो, प्रभु का श्राप हो, क्या किया जा सकता है। जब चित्रकेतु ने अपने लड़के हर्षशोक का देहांत हो गया तो अंगिरा और पर्वत मुनि आए और रोने लगे कि देखिए आपकी वजह से पुत्र हुआ, मर गया, मैं क्या करूं। तो अंगिरा मुनि ने कहा ये जो बालक की लाश पड़ी है हम उसको जीवित कर सकते हैं, आप उससे पूछ लो। तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि के संयोगवश वो लड़का जीवित हो गया। जब लड़का जीवित हो गया तो नारद मुनि ने कहा कि बालक अपने पिता से मिलो। बालक बोलता है कौन पिता, कौन से जन्म का पिता, किस लोक का पिता। मैं तो इसे घर में इसलिए आया कि इससे मेरी दुश्मनाई थी और जितना इसने मुझे परेशान किया था मैं उतना इसको परेशान करने के लिए आया। यानी कि सब दैव के अधीन है। किसी के साथ कब क्या हो जाए, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, पता नहीं चल सकता। तो यहां पर ये बैल और वो कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ हमें भी नहीं मालूम। इसका स्रोत कौन है? भगवान है, ये हमारे कर्म है, या देवों की इच्छा है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मंथरा को मां कौशल्या ने दोषी नहीं माना। दोषी माना तो भगवान को, जिसके प्रपंच से सब कुछ हुआ। तो यहां उसी लहजे में, उसी सिद्धांत में ये बैल और गाय कह रहे हैं कि ये सिद्धांत के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि हमको परेशान किसने किया। और परीक्षित महाराज समझ गए, बिना कारण के सर्व कारण कारणम, जो भी कार्य हो रहा हो, अच्छा या बुरा, नैतिक और अनैतिक, भगवान के आज्ञा के बिना, भगवान की स्वीकृति के बिना ये असंभव है। लेकिन ये देखिए, ये तो कथाएं हैं, कथाओं में शाश्वत कथाएं हैं। हम अपनी वाली लीजिएगा, हम अपने को छोड़ के सब दूसरों पे दोष मानते हैं। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि हम तो गलती कर ही नहीं सकते, हमने तो कोई गलत काम किए नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। अब कौन सी जीवन की बात कर रहे हैं? हमें तो ये जीवन में हमने परसों क्या खाया, परसों किसके साथ मिले, परसों हमने किसके साथ बात की, वो याद नहीं है। हम इस जन्म की बात कर रहे हैं, क्या क्या याद रहेगा, कैसे याद रहेगा। और हम जो भी करते हैं हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, हमें क्या मालूम हम गलत कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, इसका हमें पारितोषिक क्या मिलेगा, हमें थोड़ी मालूम। हमें तो कल सुबह की याद नहीं है, हमने सुबह 7 बजे क्या कर रहे थे बस थोड़ी बहुत हम भक्ति कर रहे थे, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, नहीं पता चलता।
लेकिन जब कोई विपत्ति आती है, लोग क्या कहते हैं, 5 घड़ी काम कियो 3 घड़ी गए सोए, 1 घड़ी भजन न कियो तो सुख काहे का होय। 5 घड़ी काम कियो, काम में व्यस्त हैं, 3 घड़ी गए सोए, और 3 घड़ी में सो जाते हैं, 8 घड़ी पूरे हो गए, 8 पहर पूरे हो गए। 1 घड़ी न भजन कियो, और 1 घड़ी भी हमने भजन के लिए नहीं निकाला, तो सुख काहे का होय। तो सुख क्यों हो? हमको थोड़ा बुखार आ जाता, बोलते हैं यार ये क्या, ये हमें क्यों त्रासदी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बैल और गाय ये दोनों जो हैं प्रतिरूप हैं आत्मा के, और आत्मा समझ रही है कि कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो बात होगी कि मेरे साथ ये घटना घटी है। मैं दूसरा भी ले लेता हूँ श्लोक। तब कल हमारे वेंकटेश्वर गोपाल प्रभु को भूलने का मौका नहीं मिला, तो आज उनको मैं मौका देता हूँ। ये मैं जल्दी आज खत्म करूँगा। 19 केचित् विकल्पवसना आहुरात्मा मनात्मनः दैवं मन्ये अपरे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुः। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवीय शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी हैं वो मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो ये प्रपोर्ट भी है, अगर आप लोग मदद करने पढ़ने में। जीवन म्हटलं प्रभु। Hare Krishna, has referred to above philosophers like Jaimini and his followers established that fruitive activity is the root cause of all distress and happiness, and that even if there is a superior authority, some superhuman powerful god or gods, he or they are also under the influence of fruitive activities because they reward result according to one's action. They say that action is not independent because action is performed by some performer. Therefore, the performer himself is the cause of his own happiness or distress. In the Bhagavad Gita 6.5, also it is confirmed that by one's mind, freed from material affection, one can deliver himself from the sufferings of material pangs. So one should not entangle oneself in matter by the mind's material affection. Thus, one's own mind is one's friend or enemy in one's material happiness and distress. Somebody want to read? Second para, I can continue? Yeah, okay. Continue. Yeah. Materialistic Sankhetis conclude that material nature is cause of all causes. According to them, combinations of material elements are the causes of material happiness and distress. And the disintegration of matter is the cause of freedom from all the material pangs. Gautama and Kanada find that automatic combination of the is the cause of everything. And impersonalists like Ashtavakra discover that spiritual evolution of Brahman is the cause of all causes. But in Bhagavad Gita, the Lord himself declares that he is the source of impersonal Brahman, and therefore he, the personality of Godhead, is the ultimate cause of all causes. It is also confirmed that in Brahma Samhita that Lord Krishna is the ultimate cause of all causes. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्म से ज़्यादा लोगों की निगाहें हमको परेशान करती हैं। किसी की काली नज़र हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी
दिल से आह निकली तो गलत कार्य हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है कि गौतम, कर्णद, अष्टवक्र जैसे लोग की सबकी अलग अलग धारणा है। किसी की धारणा है कि तुम कर्म करते चले जाओ, भगवान तुमको अच्छा फल देने के लिए विवश हैं, बस कर्म करते चलो, कैसे भी कर्म करो, भगवान आपको अच्छा ही फल देंगे। अब उनको नहीं मालूम अच्छा फल क्या है। लेकिन जब कर्म व्यवस्था है, ये हमारी कर्म भूमि है, स्वर्ग जो है भोग भूमि है और नर्क जो है परिताड़ना भूमि है, तो वहां जो रहेगा उसी तरह कार्य होगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत। इस भोग भूमि में जो हमारी ये जो हमारी कर्म भूमि है, कोई भी व्यक्ति विशेष जो थलचर हो, जो चलने वाला हो, उसको कर्म करने पड़ेंगे और कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता कहती है, यथा धाम से समसिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधः। ज्ञान की अग्नि के द्वारा, भगवान के ज्ञान के द्वारा हमारे जितने भी कर्म हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, वो समस्त नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे बीज कोई है, बीज को धरती में डालोगे तो बीज का पौधा उगेगा ही, 99.9999% उगेगा ही, एक दो का कोई छोड़ करके। लेकिन अगर उन्हीं बीजों को आप तवे पे भून दो और फिर उनको जो है जमीन में डालो, तो वो कभी भी उनका पौधा नहीं निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार कहा जाता है कि जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के लिए हमें कपड़ों में साबुन लगाना पड़ता है, खूब साबुन लगाना पड़ता है, साबुन में धोना पड़ता है, और उसके बाद उसको पानी में इतना साफ करना है कि उसमें साबुन न रह जाए, साबुन नहीं चाहिए, इस प्रकार धोना है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन अंत में वो ऐसा किया जाए कि कर्म साफ कर दिए जाएं। यथे धाम से संसित अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधः। तो ज्ञान के अग्नि के द्वारा या भक्ति के द्वारा ये सारे के सारे कर्म समाप्त हो सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम क्या अपनाएं, कौन सा रास्ता अपनाएं। भगवान ने तो अर्जुन को कहा, यथा इच्छेसि तथा कुरु। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। पूरा ज्ञान देने के बाद कहते देखो, फिर भी तुम जो हो बंधन में नहीं हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, जो करना है करो। और अर्जुन ने क्या किया? नष्टो मोह, मेरा मोह खत्म हो गया, स्मृति लब्धा, और मेरी याददाश्त वापस आ गई है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे भगवान कृष्ण, ये आपका प्रसाद है मेरे लिए। स्थितो अस्मि, अब मैं सही जगह स्थित हूं। गत संदेह, और सारे संदेह खत्म हो चुके हैं। तो फिर करेशे वचनम तव, अब मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। तो यहां बैल और गाय ये कह रहे हैं कि भाई अलग दार्शनिक अलग अलग चीज कहते हैं। अब हम कैसे कहें कि हमारे दुखों को कारण कौन? कभी कभार एक बार श्रील प्रभुपाद जी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक सड़क है, कैनॉट प्लेस है न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए, वो बैक टू गॉड हैंड मैगजीन ढेर सारा जो लेके जा रहे थे, तो एक बैल आया और बैल ने जो है प्रभुपाद जी को धक्का मार दिया और सारे पेपर नीचे गिर गए। अब लोगों ने जो है मदद की,
बुजुर्ग थे, इकट्ठा किया। तो प्रभुपाद जी उस बैल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई। और जैसे प्रभुपाद ने मेरे से क्या गलती हो गई, वो बैल जो है चला गया। लेकिन अगर हम होते तो उठा के 2-3 डंडे और 4-5 पत्थर मारते। तो जो वैष्णव होता है वो हर जगह, घर में हो, बाहर हो, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो हमेशा ही जो है शांत मन से रहता है। प्रशांत मनम येनम योगिन उत्तमम समथिंग, बहुत नाइस श्लोक है। प्रशांत मन आई थिंक फिफ्थ श्लोक उसमें। एनीवे आई फॉरगेट दैट। सो प्रशांत मन। और प्रशांत मन कब होगा? जब भगवान हमारे हृदय में होंगे। भगवान जब हमारे हृदय में होंगे तो भगवान कहते हैं कि अच्छा श्लोक है रामायण का, जाके ताके हृदय बसहु रघुराग, लोभ क्षोभ न द्रोह जिनके माथा। से समथिंग है कि जिसके हृदय में लोभ न हो, लालच न हो, काम वासना न हो, उस हृदय में भगवान बसते हैं। तो यहां देखिए, इतनी परेशानी के बावजूद भी दोनों ये नहीं कह रहे हैं कि कौन हमारा जो है हमको परेशान करने वाला है। लेकिन हमको ये मानना चाहिए, क्योंकि हमने गीता पढ़ी है, हमने गुरुजनों से सुना है कि अधिकतर हमारे कर्म ही हमें फल देते हैं, अच्छा या बुरा। इसलिए कर्म से बचिए। भाई कर्म से कैसे बचेंगे? बाबा ने कह दिया तुम बिना कर्म कहे तुम रह नहीं सकते हो। हाँ, तो क्या कर्म करेंगे? हमारे मस्तिष्क में 2 प्रोसेस हैं, एक है मेन प्रोसेसर, एक है सेकेंडरी प्रोसेसर। तो मेन प्रोसेसर है वो काम के जिस काम को कर रहे हैं, और सेकेंडरी जो प्रोसेस है उसमें आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहिए। 2 प्रोसेस हैं, यानी कि हम एक समय में 2 चीजें सोच सकते हैं। हम काम भी करें, सोच कुछ और रहे। प्रभुपाद ने बहुत शानदार उदाहरण दिया है कि अगर किसी ब्याहता पत्नी का कोई दूसरा पैरामोर हो तो अपने पति के सामने पति की सेवा करेगी, लेकिन अपने दूसरे माइंड में जो उसका पैरामोर है उसका ध्यान करती रहेगी, प्रभुपाद ने कहा। तो ठीक इसी प्रकार हम भी एक समय में 2 काम कर सकते हैं। एक तो काम जो हमारा भौतिक काम है, और दूसरी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान को सतत याद करना। तो बैक बर्नर में चलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आगे आप जो है जो काम करें आप करते रहिए, ये संभव है। तो हमें इन श्लोकों से क्या सीखना है कि हमें जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारी गलती का प्रताप है, हमारे कर्मों का प्रताप है। अब उन कर्मों से कैसे छुटकारा पाए हमें क्या मालूम। जन्म जन्मांतर से अनेकों जन्म से जो है हम इस लोक में बैठे हुए हैं, न मालूम हमने क्या किया हो। वो कहते ना, मात मिले पुनितात मिले जुगति सुखदाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक भी जाए, और यहाँ सब कुछ मिले संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। यहाँ सब मिलते हैं। मात मिले, माता मिलती है, अनेक जन्म हमारे माता रही हैं, पिता रही हैं, हम किसके पिता रही हैं, सब कुछ रहा है, भाई रहे, सब कुछ मिलता है। लोक मिले, ये लोक मिलता है, परलोक मिलता है, विधि लोक भी मिलता है। लेकिन क्या मुश्किल है? संत समागम। और जब संत समागम का मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य याद, करे जो संगत साधु की, हटे कोटि कोटि अपराध। एक घड़ी यानी 24 मिनट्स, आधी घड़ी मीन्स 12 मिनट्स, उसकी आधी 6 मिनट। अगर 6 मिनट भी हमने किसी साधु का सत्संग कर दिया
कैसे साधु? जो श्रीमद् भागवतम में हैं, ये जो चलते फिरते साधु हैं। हरे कोटि कोटि अपराध, कोटि यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, कोटि यानी क्या बोलते उसको, प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन कोटि यहाँ है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अपराध। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जब आप भागवतम की सेवा करेंगे, भगवत गीता की सेवा करेंगे, तो आपकी दिनचर्या पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप वही करते चले जाएंगे, उससे बेहतर कार्य करेंगे आप। लोग हैरान होंगे, यार इतना अच्छा कार्य आपने कार्य कर दिया, लेकिन आप तो निमित्त मात्र भगवान के कर रहे हैं, तो आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि आपकी लोग प्रशंसा करेंगे। आपने कोई छोटा सा काम कर दिया फिर भी प्रशंसा करेंगे। अब ये प्रशंसा आपकी नहीं है, आपकी प्रशंसा आपकी भक्ति की हो रही है। और इसलिए इन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान अग्नि सततम हर समय यही लीलाओं का स्मरण, भगवान के नाम का जाप। बहुत लोग कहते हैं। एक बार हम किसी सत्संग में थे और भक्ति विकास स्वामी को हम लेके गए, तो वहाँ किसी ने कहा, कोई एक प्रोफेसर थे बहरीन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने प्रश्न किया महाराज से कि महाराज ये बताएं, जब भगवत गीता में कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य, तो कली में भगवान क्यों नहीं आ रहे? क्या जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो झूठ है या भगवत गीता झूठ है? तो महाराज ने बहुत शानदार उत्तर दिया कि जब कृष्ण यहां थे ना, तो लोगों ने उनको भी नहीं पहचाना। अगर मैं आपको बताऊं कृष्ण यहां हैं, आप यकीन करेंगे? बोला महाराज बताइए। बोले इस वक्त कृष्ण जो है नाम रूप में विद्यमान है, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में विद्यमान है। तुम चाहो तो हर समय हर पल भगवान के साथ जुड़े रहो, तुम्हारा अनर्थ नहीं होगा। क्योंकि अगर भगवान सामने आ भी जाए, आप कैसे पहचानोगे? ये तो जरूर नहीं है कि भगवान वही जो है अपनी पीली धोती पहनकर, मुकुट लेकर, बांसुरी लेकर आपके सामने खड़े हो जाए तो पहचाने? न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण किस भेष में हमें क्या मालूम? इसलिए स्वाध्याय, स्वाध्याय पर चर्चा। हम कहते हैं आप लोग जब कभी मौका मिले दोपहर में किसी को फोन कीजिए, ये पूछिए अभी मैं ये पढ़ रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या मैं आपको बताऊं ये नई चीज मुझे सुनने को मिली, तभी जाके जो है हम भक्त बन सकते हैं। खाली 1 घंटा ठीक है, बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा कीजिए, बताइए, रिवील कीजिए, ये प्रश्न पूछिए, ऐसा क्यों, ऐसा कैसा। और जितना ज्यादा हम पूछेंगे, जैसे हम परसों कह रहे थे, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितनी ज्यादा आप इसको खर्च करेंगे, विद्या को खर्च करेंगे, उतनी ज्यादा आपको आएगी। तो ये यहीं पे सिमट मत जाइए कि ठीक है शाम को क्लास होगी, बस 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटा काफ़ी नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर विद्यच्छ। हमारी एक दोस्त की लड़की है, उसने MBBS किया, तो कहने लगी प्रभु मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे लिए क्या शिक्षा है, मैं कैसे लोगों की सेवा कर सकती हूँ, भगवान की सेवा कर सकती हूँ अपने प्रोफेशन में। इसमें वो क्या डायबिटीज की एक्सपर्ट है इन सूरत में। तो मैंने कहा बेटे जब कभी तुम्हारे को बीमार आए ना, उनको कहना कि सबसे पहले जो है आप मांसाहार छोड़ दीजिए, इससे बहुत बीमारियां होती हैं, जितनी तेरे पास आए बोले मांसाहार छोड़ दीजिएगा। उसने कहा और अगर ली मीट ईटिंग, मांसाहार ली मीट ईटिंग। बोला लेकिन प्रभु जी अगर कोई वेजिटेरियन हो तो मैंने उसको बोलो बिना भगवान को ऑफर किए खाना मत खाइए बस तो इतनी सेवा कर ले तेरा काम हो जाएगा। तो फिर पीछे करीब 2-3 महीने पहले मैंने कहा मेरे शिक्षा काम आ रही है। बोला बस प्रभु मैं थक गया बोल बोल करके कि भाई कोई बोलता है खाते हो, को बोलते नहीं खाते हो
तो मैंने कहा बेटा तुम यही करो, यानी अगर आप इतना भी कर पाओ और लोग आपकी बात सुन करके समझ जाएं तो क्या हो सकता है। तो इस प्रकार मैं तो उनको खाने को बोलता हूँ, आपको कैंसर आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, खाओ, हमारे लिए हमारा नौकरी चलता रहेगा। नहीं, आप नहीं खाना बंद किया तो हमारा नौकरी बंद हो जाएगा। भाई ये प्रीचिंग के अलग अलग मेथड हैं, आप वो करते नहीं जो आप करते, डिफरेंट मेथड्स। मैं उनको खाने को बोलता हूँ, क्योंकि उनका और पत्थर हो जाएगा, मैं बताऊंगा उनको, आप खाओ, पत्थर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, हम डॉक्टरों को काम मिलेगा, हॉस्पिटल बढ़ जाएगा। सही बात है कि अनेक तरह से आप लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप उनको एक छोटी सी कथा है, मैं आपको बता दूं कि एक आदमी हॉस्पिटल में था, बहुत बीमार था। तो जब बहुत बीमार था, डॉक्टर उसके पास आया और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? बोले देखो मेरी खिड़की के सामने ना जो पेड़ है ना, वो दिन ब दिन जो है मुरझा रहा है, उसकी पत्तियां गिर रही हैं, और ये मेरा संकेत है कि शायद उस पेड़ में मेरे प्राण हों, और जैसे ये पत्तियां निकल जाएंगी मैं खत्म हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, चला गया। दूसरे दिन जब मरीज उठता है और वो देखता है उस पेड़ पे पत्तियां रखे, और जैसे उसने पत्ती देखी उसका जीवन उभरने लगा, उभरने लगा, उभरने लगा। और जब उसका डिस्चार्ज कर आया तो डॉक्टर आया, बोलो कैसे हो? बोला ठीक ठाक हूं। बोले कैसे? बोला पेड़ देख लो सामने। तो डॉक्टर बोलता है अरे भाई सुन, वो जो पेड़ है ना, उस रात को मैंने प्लास्टिक के पत्ते लगा रहे हैं उसमें। प्लास्टिक के पत्ते हैं। तो अपना हौसला मत छोड़िए कि यार मैं अब चांटिंग नहीं कर पाता, मैं जो पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आती, मुझे याद नहीं रही थी, मुझे ये नकारात्मक बात छोड़िए। आप कहते सारे पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा? भगवान का नाम ना। अगर भगवान का नाम आ रहा है बाकी क्या चाहिए? और हम कितनी देर से बोल सकते हैं? कब तक बोलेंगे? कहीं ना कहीं तो आदमी भूल जाएगा ना। एज है, सब कुछ है, लेकिन अगर इतना करने के बावजूद अगर भगवान कृष्ण का नाम याद रह जाए तो वाह वाह। तो इसके साथ में अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्संग मिलने के लिए। हरे कृष्णा।